what's up? Hope you're doing well and welcome to my channel. Oh my god, I cannot fucking believe that this is true. Actually ना ये वीडियो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा because I've forgotten my tripod somewhere and I'm not able to place it straight. तो ये थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा लग रहा है मुझे. Okay, so this video is the long overdue video. I cannot believe. मुझे इतनी दिल से खुशी हो रही है that I am finally shooting this video. I am literally मैं तोतला रही हूँ अभी. It's been such a long time since I've come here. मैं बैठ के आपके साथ बातें नहीं कर पाई हूँ ठीक से. क्या करूँ यार, मेरे पास बक्कल भी नहीं है, बताओ. इस वीडियो का जिस तो आपको समझ ही गया होगा that I'm just going to get ready. I'm going nowhere. By the way, मैं ऐसे ही तैयार हो रही हूँ. मैंने मेकअप नहीं करा है बहुत दिन से. You guys know my love for makeup. But I'm just not feeling that great because मुझे काफी ज्यादा breakouts हो रहे हैं. Like this side of my face, I often don't get so many breakouts, but currently I've been getting like 1, 2, 3 and यहाँ पे 4-5 हुए हैं. इससे पहले भी ना मैंने काफी वीडियोस शूट करे हैं and most of them are edited. कुछ edit होना भी बाकी है, तो मतलब 2-3 वीडियोस और हैं which will go live after this video goes live. I just wanted to take my time, let things happen first and then tell you guys. I am doing YouTube and Instagram now for almost 2 years at this point. 3 years तो हो ही गए हैं, लेकिन I tell everyone 2 years कि बहुत सीरियसली मैंने 2 सालों से शुरू किया. उसके पहले तो I was just इसको प्रोफेशनली बिल्कुल नहीं लिया था. मैं तो बस ऐसे ही पोस्ट करने के लिए करती थी. Ever since I was a kid ना, मेरे को बहुत दिक्कत होती थी डिसिप्लिन्ड होने में. I could perform really well if I put in the hours. That's the case in everything that I do. I used to procrastinate everything all the freaking time. This is the only thing where I never had to do it. Like मुझे कभी भी करना नहीं पड़ा था. Second nature होता है, जैसे मुझे कुछ इतना अलग से करना नहीं पड़ता था इसको करने के लिए, which is something that I really appreciate. So that I just had to pick my camera up and kind of just start recording and automatically चीजें मेरे दिमाग से आ जाती थी. मेरा प्रॉब्लम यही था कि मैं बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट हूँ. जब तक चीजें एकदम परफेक्ट नहीं होती ना, तब तक मैं नहीं कर पाती वो चीज. You know, close to perfect. अभी तक कहीं पे भी शेयर नहीं किया है कि मुझे कितने परसेंटेज आए, because I thought that is not important. If you want to know, I think मैंने शेयर किया या नहीं किया. Let me know if you want to know. अगर आपको जानना है तो मैं अलग से उसके पीछे एक वीडियो बनाऊंगी. आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि ये मेरा स्ट्रेस कितने हद तक कम करता है. Feels like therapy to me. I don't know. I'm so grateful. Thank you God. मैंने अच्छे दिन भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे. बेसिक नेसेसिटीज की अगर बात करूँ तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ. Thankful to my dad for that. He has always taken care of that. But when it comes to like mentally, मैंने literally ऐसे दिन भी देखे हैं जहाँ पे I would blast. जहाँ पे I was so scared of the fact कि कहीं मैं पैनिक अटैक से मर ना जाऊँ. I'm so glad that भगवान ने मुझे हर पार्ट पे मदद करी है. Everything that happens for a reason. Like 2019 के बाद I don't know what happened, but life literally changed upside down. जो चीजें मैंने कभी नहीं सोची थी ना कि मैं इसके बारे में चिंता करूंगी, उस चीजों के बारे में मैंने चिंता करी है. My relationship with a lot of people have changed. I remember crying to bed every single night. I think there's nothing to be ashamed about it, but I've been to therapy and I don't think I want to talk much about it. वो एक फेस आया जहाँ पे मैं इतना ज्यादा पोस्ट नहीं कर रही थी. गिल्टी भी हो रहा था और ऐसे भी हो रहा था जैसे कि मैंने बहुत काम कर लिया है. एग्जॉस्टेड वाली फीलिंग, बोथ मेंटली एंड फिजिकली. आई डोंट नो वेयर दैट केम फ्रॉम, बिकॉज मैं इतना काम नहीं करी थी ऑनेस्टली वो टाइम पे. मुझे इस चीज का बहुत शेम था, बहुत गिल्ट था. एंड देन आई वाज लाइक फक इट यार, आई जस्ट वांट टू टेक दैट वन स्टेप अहेड एंड फाइनली स्टार्ट वर्किंग. उसके बाद ना शूट वगैरह के लिए मेरे को काफी दूर तक आना पड़ता था. वर्क सो मच दैट आई कैन अफोर्ड गोइंग थ्रू अ कैब एंड कमिंग बैक थ्रू अ कैब, इवन इफ दैट हैज टू बी every alternative day or whatever. थोड़ा सा पैसा बचाना is not a bad thing, especially transport में, कि वो पैसे waste है यार जब कैब वगैरह से जाती हूँ मैं. It just doesn't feel right, like 1-2 घंटे का. मैं जब locals वगैरह से जाती हूँ तो मैं exhaust हो जाती हूँ जब तक घर आती हूँ, and I have no energy left. And if you guys don't know that I also work with my dad and I also do shoots and then I also have to study, right, because I'm also doing currently मेरी college अभी कल से शुरू होगी, but उससे पहले मैं बोर्ड्स करती थी तो मैं इतना ज्यादा थक बोर्ड्स करती थी. उससे पहले मैं स्कूल जाती थी ना, 12th का कॉलेज था मेरा. Very honest, this is a secondary reason, but firstly I felt like I needed my own space, my own freedom, and I felt like I want to be independent, just be with myself and देखूं कि क्या हो सकता है मुझसे, क्या नहीं हो सकता, और मैं कैसे independently अच्छी तरीके से काम कर सकती हूँ, especially for work. That's when I decided that I want to move out, and girl, it was so challenging to even think that. When you think that you want to move out, there's a lot of things that you have to consider, right? सिर्फ move out करना है वो enough नहीं है. बहुत सारी और चीजें हैं जो तुम्हें consider करनी होती है. For people who want to move out, let me tell you, it's not easy. When people used to say कि move out करना difficult है, I was like, कैसे difficult हो सकता है? It's so rosy and I thought it's so rosy and I thought it's going to be super exciting because ये मेरा dream था कभी से. ये मैंने decision ले लिया था that मुझे करना है, and then talking to my parents was super challenging. पता भी नहीं है कि मैं कैसे तुमको एक्सप्लेन करूँगी कितना डिफिकल्ट था कन्विंसिंग माई पेरेंट्स. लाइक व्हेन आई ट्राइड टू कन्विंस माई मॉम, मुझे बहुत ग्रेजुअल और स्लो होना पड़ा इस पूरे प्रोसेस में. तो इट्स अ स्ट्रेट अप नो, इट्स लाइक यू कैन डू इट एंड यू हैव टू सिट डाउन, यू हैव टू ओह शिट आई रूइंड माय पैंट्स. पापा को इट वाज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन हिम. लाइक काफी ज्यादा कलेश हुए, काफी ज्यादा लड़ाइयाँ भी हुई. कैसे भी कर करके आई जस्ट फाइनली हैव मूव्ड आउट. पेरेंट्स को बनाना इज नॉट इट. उसके बाद काफी बड़ा चैलेंज बचता है विच इज हाउस हंटिंग. एंड यू गाइस, यू हैव नो आइडिया. एक्चुअली ना प्रॉपर व्लॉग बनाया था, 2 वीडियोस बने
थे हाउस हंटिंग पे. आई डोंट नो हाउ दे गॉट डिलीटेड एंड दे जस्ट गॉट डिलीटेड. मेरा ऐसा फाइनल हुआ ना दैट आई वांट टू मूव आउट. तो हमेशा ऐसा था कि मैं पॉलिमी के साथ मूव आउट करूंगी. इट वाज मी एंड पॉलिमी. ठीक है, हम दोनों साथ में मूव आउट करने वाले थे. पॉलिमी इज माय फ्रेंड बाय द वे. भाविका उसकी एक और दोस्त है, वो भी मूव आउट करेगी साथ में. एंड आई वाज लाइक फाइन, दैट्स फाइन विद मी. उसके बाद रिया करके एक और दोस्त थी, शी वाज आल्सो सपोज्ड टू मूव आउट विद अस बट दैट डिडंट हैपन फॉर सम रीजन. आई डोंट नो. वी स्टार्टेड हाउस हंटिंग and God, let me tell you, finding a house in budget for girls and for bachelors is so freaking oh my god, it's so difficult. उन लोगों को बैचलर्स से क्या प्रॉब्लम है? मतलब जो चीजें बैचलर्स कर सकते हैं क्या वो फैमिली नहीं कर सकती? बैचलर्स हल्ला मचा सकते हैं तो फैमिली नहीं कर सकती? मतलब बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता. जनरली स्टीरियोटाइपिंग बैचलर्स इज बीइंग एक्सट्रीमली बैड. लाइक नॉट ऑल फैमिलीज आर द सेम, नॉट ऑल बैचलर्स आर द सेम. Nobody among us was a Muslim, but everyone used to ask us this question कि ठीक है आप बैचलर तो ठीक है पर आप मुस्लिम तो नहीं हो ना. I just want to say that we are all humans and there are certain humans that don't know basic etiquettes, but that doesn't mean कि सारे के सारे group of people, like if you're a group of bachelors you will be bad only. For me that was really exhausting and kind of frustrating कि कैसे तुम यही सुन के कि मैं बैचलर हूँ तुम फोन ही रख देते हो. Each of us had a different demand. मतलब हर एक जन को ऐसा था कि मुझे ये चाहिए और the other one was like बट मुझे वो चाहिए and then the third one was like बट मुझे वो चाहिए. तब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा था कि सबकी नीड्स को फिगर आउट करके बैचलर वाला टैग को भी रख के साथ में उतना बड़ा वजन था वो हमारे दिमाग पे. वो महीने पूरे हमने हाउस हंटिंग किए एंड ऐसा नहीं कि एक दिन गए और फिर 15 दिन बाद ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव डेज हम कोई घर देखने जाते थे. चेकलिस्ट तो थी भी नहीं हमारे पास बस यही बस यही चेकलिस्ट थी कि हम लड़कियां हैं, हम बैचलर हैं और बजट, बस दैट वाज दैट एंड एवरीथिंग एल्स वर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज. बाद में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी हम तीनों के पीछे. क्या करे यार, घर मिल ही नहीं रहा था दूसरे लोकेशन में. सो आई वाज सजेस्टिंग अ डिफरेंट लोकेशन एंड दे वर लाइक नहीं बहुत दूर पड़ेगा. सो देन दैट डिडंट वर्क आउट एंड देन आरशा एंड तिथि माय अदर टू फ्रेंड्स, उन लोगों के साथ हुआ बिकॉज दे वर आल्सो अपेरेंटली सर्चिंग फॉर अ हाउस एंड आई वाज आल्सो लाइक really house hunting and looking for flatmates. They reached out to me and then things worked out between us and then we finalized a घर. We finally figured out a घर. हमने घर फाइनल कर लिया. We paid deposit. हमने चाबियों के डुप्लीकेट कर लिए. हमने लिटरली इतना कुछ कर लिया था. अग्रीमेंट we were done with the agreement. We were done with the पूजा, जो घर में पूजा करते हैं. हमने किचन सेट कर लिया था, क्रॉकरीज वगैरह रख दी थी. And then at the last moment the society office people are telling us that you are a bachelor and you can't live in our society. सोच सकते हो कि हम कितने ज्यादा अनॉयड हो चुके होंगे at that point. So like literally all of us were like हम चीजें फेंकना चाहते थे. लिटरली इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था हमको. Everything was discussed यार. ऐसा भी नहीं था कि हम छुप के बैचलर्स हैं. तो एंगर से ज्यादा तो मेरे को इतना डिसअपॉइंटमेंट था कि क्यों कुछ वर्कआउट नहीं करा. इतना कुछ क्या ना, हम कब से घर ढूंढ रहे थे. 2 महीने से मैंने पॉलिमी लोगों के साथ घर ढूंढा, नो ब्रोकर का सब्सक्रिप्शन लेकर. एंड लेट मी टेल यू गाइज, प्लीज डोंट गो फॉर नो ब्रोकर. आई डोंट नो अगर सबको ये मतलब इशू होता है, लेकिन मेरे साथ तो ये बहुत ही ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस रहा है मेरा नो ब्रोकर के साथ. उन्होंने मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था उनका मनी बैक वाला, जिसका मनी मुझे अभी तक बैक नहीं मिला है. दे टोल्ड मी इट इज अ बैचलर फ्रेंडली हाउस एंड इजंट योर. सो बेसिकली जब आप वो लेते हो ना तो तुमको एक रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है विच इज ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रोकर हु इज सपोज्ड टू फाइंड यू घर एंड यू आर नॉट सपोज्ड टू डू एनीथिंग. इट्स जस्ट अ रिलैक्स मनी बैक प्लान. बट वाज आई एक्चुअली रिलैक्सिंग? नो. द रिलेशनशिप मैनेजर ही डिड नथिंग. लेट मी टेल यू, ही डिड नथिंग. फोन उठाने में भी उसको मौत आती थी. एब्सोल्युटली यूजलेस टू बी स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन एन एप्लीकेशन दैट डजंट इवन रिवर्ट टू द कस्टमर्स. अग्रीमेंट भी नो ब्रोकर से कराया सोच के कि चलो छोड़ो यार, घर तो मिल गया एंड ऑल ऑफ दैट. ने नो ब्रोकर से अग्रीमेंट कराया. पीपल वर सपोज्ड टू लाइक यू नो टेक योर साइंस एंड थंबप्रिंट्स एंड ऑल ऑफ दैट. उन्होंने हमें बोला कि हम कल आएंगे. बाद दे टोल्ड अस दैट हम कल नहीं आ सकते, हम परसों आएंगे. मैंने बोला चलो ठीक है फाइन, परसों आओगे. मैंने उनको बोला देखो हम लोग 4 लड़कियां हैं जो अलग अलग जगह से आती है, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक टाइम फिक्स करो बिकॉज हम ट्रेन से आएंगी, ठीक है. इतना दूर से 2 घंटे दूर से हम आएंगे, ठीक है. हम एक टाइम फिक्स करेंगे एंड 3 बजे का टाइम फिक्स हुआ था. एंड उन्होंने बोला कि अगर आपको 3 बजे चाहिए देन यू हैव टू पे बिफोर 2 PM. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज इट, मतलब ये कौन सा लॉजिक है, मैं दिन में कभी भी पे करूँ ना. उन्होंने बोला नहीं, अगर आपको वो टाइम पे चाहिए तो आपको वो मतलब 2 बजे से पहले पे करना पड़ेगा. फाइन ठीक है. तो मैंने एडवांस पेमेंट किया, पूरा का पूरा एडवांस पेमेंट किया, ठीक है. एंड डिड दे कम? नो दे डिडंट कम. नॉट ऑन टाइम वो प्रॉब्लम नहीं है कि वो मतलब प्रॉब्लम तो है कि वो टाइम पे नहीं आए, बट वो आए ही नहीं. एंड उस पर भी दे वर नॉट पिकिंग अप आवर कॉल्स, दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आवर टेक्स्ट. आई डोंट नो इफ इट वाज जस्ट माई एक्सपीरियंस बट आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल कि नो ब्रोकर ने उनके साथ भी ऐसा ही किया. सो डिसहार्टेड. मेरी मम्मी ने बोला लोग सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव ट्राइड बट कुछ भी वर्क नहीं करा है, मे बी दिस इज नॉट द टाइम, यू शुड वेट. सो डिसहार्टेड. आई वाज लाइक आई वांट टू मूव आउट, आई वांट टू स्टार्ट वर्किंग एंड ऑल ऑफ दैट. एंड शी वाज लाइक यू नीड टू वेट. ऑलमोस्ट लाइक अ साइन दैट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल मी दैट वेट, दिस इज नॉट द राइट टाइम. आई हैड पोस्टेड स्टोरीज. मैंने पूजा करी थी वहाँ पे, उसकी स्टोरीज मैंने पोस्ट करके रख दी थी. एंड
फील सो बैड बिकॉज उसकी स्टोरीज पोस्ट कर दी थी मैंने और मैं इतनी ज्यादा खुश थी. लिटरली पोस्टेड अ पैराग्राफ अबाउट हाउ insanely grateful and proud I was feeling that day. अंडरस्टैंड कि सबकी आंखें एक नहीं होती, सब सेम नहीं सोचते हैं. पहले मैं नहीं बिलीव करती है सब में, बट कभी कभी लगता है यार कि नजर लग सकती है लोगों की. मुझे बस ऐसे हो रहा था why are things not working out. It's also very very desperate, let me tell you. बहुत ही ज्यादा desperation में किया है मैंने सब कुछ. At the end जब चीजें सब सॉर्ट हो जाती है ना, you feel a sense of relief which I'm feeling right now. एक महीना मैं घर पे बैठी थी, sad, disappointed but still working and kind of getting along with life because क्या करें यार, काम तो करना ही पड़ता है. गरिमा मेरी दोस्त है ये, she used to live in Pune. She was not even thinking about it but I was just telling her that you know why don't you come Mumbai, you can come Mumbai right. मतलब ऐसे मैं उसको explain कर रही थी like oh yeah I can come Mumbai and I was like can you, then why can't we live together because I was as it is looking for a roommate, house hunting and she has 2 dogs so this is a +1 of a headache क्योंकि अगर तुम्हारे पास कुत्ते हैं और तुम बैचलर हो और तुम लड़कियां हो, if you're trying to find a house. Finally we found a house. It is the one that I'm currently in. काफी ज्यादा issues थे. We were told that we are gonna get a clean house. It was unfurnished but we were told कि हमको clean house मिलेगा, जो कि बिल्कुल नहीं मिला. Fans light जो कि लगनी चाहिए rented house में, वो भी नहीं थे हमारे पास. उसके बाद लॉक, सारे रूम के लॉक्स खराब थे. पानी का सबसे बड़ा इशू जो हमको लगा इस घर में वो था पानी का प्रेशर एक तो बहुत ही ज्यादा कम आ रहा था, बहुत ही ज्यादा. मतलब तुम अगर 1 घंटा बाल्टी खोल के रखो भरने तब जाके तुम्हारी बाल्टी भरेगी. पानी आता नहीं था, वो तो और बड़ा इशू था. प्रेशर तो मतलब ठीक है पर पानी आ ही नहीं रहा था, वो भी मतलब बहुत ही बड़ा इशू था. सो दैट वाज द केस. सिंक का पाइप वगैरह मतलब बहुत इन शॉर्ट ये घर रहने लायक नहीं था बिल्कुल भी. ठीक है, हमने सोचा था 3-4 दिन में शिफ्टिंग हो जाएगी, जो कि हो चुकी थी. लेकिन व्हेन इट कम्स टू द क्लीनिंग, व्हेन इट कम्स बिकॉज घर हद से ज्यादा गंदा था. बाथरूम तो मतलब अनबेरेबल थे. आई कुड प्यूक, इतने गंदे थे. मेरा पेरेंट्स का घर वाज सो मच बेटर. मैं ऐसा सोच रही थी. डेफिनेटली इट टुक अस ओवर 7 days, लाइक ओवर अ वीक्स टाइम. काफी ज्यादा पैसे गए, काफी ज्यादा टाइम गया, काफी ज्यादा एनर्जी, बोथ फिजिकल एंड मेंटल. टेल यू कि कितनी बारी हमने चीजें यहाँ से वहाँ की है, झाड़ू पोछा, लाइक वी वर लिटरली स्वेटिंग. हम रात के 2-2 बजे तक यही कर रहे थे क्योंकि क्या करें यार हम, मतलब घर की हालत बहुत बेकार थी. It's been over 7 days at this point since we have moved out and we have worked our asses off. I waited. मैं तरसी हुई है बोलने के लिए. Our house is now ready. It's ready. And here is my space, my room. भगवान को इनफ थैंक यू नहीं बोल सकती इस चीज के लिए क्योंकि बीच में तो मुझे लगा था शायद ये रूम कभी अच्छा हो ही ना. There's a lot of work जो कि गया है इस रूम को अच्छा बनाने के लिए. ये सब जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये सब मैंने खुद ने किया है. खुद ने मतलब मैंने और मेरे दोस्तों ने किया है मिलके, एंड मेरी चाची ने एंड मेरी मम्मी ने. आई थिंक दैट इज व्हाट हैज बीन हैपनिंग. शिफ्टिंग इज बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग. एकदम मौत सी आ गई थी शिफ्टिंग करते करते. आई प्रे दैट इट डजंट हैपन टू एनीबडी एल्स एंड टू मी आल्सो नेक्स्ट टाइम आई मूव आउट बिकॉज इट्स अ रेंटेड अपार्टमेंट. बाय द वे इट्स गोना टेक टाइम बट धीरे धीरे ग्रेजुअली होगा. घर सेट करना इजी नहीं होता. इट्स अ ह्यूज प्रोसेस. यू गाइस हैव नो आइडिया हाउ मच आई हैव क्राइड आउट ऑफ एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, जॉय, प्राइड. आई कांट टेल यू. मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ और ओवरवेल्म्ड हूँ मोर देन anything else. इसी का तो इतना इशू है ना मेरे पास यार, मैं क्या बताऊं. बट anyway I think this video is turning out to be super long, so I'm going to meet you guys with another video. Let me know if you want a part 2 where you want me to tell me more about my shifting process, how I've been feeling and all of that. तो मैं वो करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा बातें हैं बची. Thank you so much for listening. It is all because of you guys. I love you guys so much and I mean it. I'm so grateful. शुक्रिया. Bye.